extravaganza. Dear viewers, be on your toes to witness our young and vibrant Kamal products on the stage to rock this evening. This is an evening worth remembering as our dearly beloved students, which are moving with high intelligence and skills, a stage full of dancers to enjoy and a message to take home. We feel honored and proud to welcome you all for our Parents' Day 2023. God, the supreme authority of everything, prevails everywhere. Prayer. I would like to attune you to the stage and join with the performers to proclaim the greatness of God. Tripod, toma com ele, tripod. is to establish integrity. I now request our students Prem Mahato, Palak Raika and Sumo
Sumona Bardhan to deliver the welcome address. The MLA of Belmo, Reverend Sister Lizzie Tharas CHF, the President of Carmel School Kargili, Shri Sanjeev Kumar Singh, the CEO of Belmo, Shri K. Ramakrishna, the General Manager of BNK area, respected Sister Sharon Joseph, our Principal, all the distinguished guests of the day, dear parents, teachers, non-teaching staff, loving students and well-wishers. A very good afternoon to one and all. Namaste. Class 7 Sumona Bardhan of Class 5 and Palak Raika of Class 11 have the distinct privilege to welcome you all to this colorful evening, which is a milestone in the history of Carmel School Kargali. Our century is defined as a century of paradoxes. Our century is defined as a century of paradoxes. Today, we have taller buildings but shorter temples. We buy and accumulate more but enjoy very less. We have bigger houses but small families. We have more degrees but unfortunately less practical sense. We have more medicines but less wellness and more illness. We eat and drink too much but we have less satisfaction. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan has said, we have the best of refrigerators, best of computers, and the best of all machineries, but sadly, the worst of all human beings. Humans have learned to swim like a fish in the water and fly like a bird in the air, but have not learned to adjust and accept his brothers and sisters. Today, we have guided missiles, but we have misguided human beings. We have time for social media, blogging, Facebook, WhatsApp, YouTube, Snapchat, TikTok, and the list goes on and on. But we have no time for our parents. We have no time for our children. And unfortunately, we have no time at all for our friends and neighbors. However, even among this infinite number of paradoxes, there are signs of positivity. Today, coming together and living together is meaningful. There are good Samaritans who work tirelessly to make our world a little more beautiful. Individually, we will remain as one drop, but together we become an ocean and can make a change. In this context today, we have named our Parents' Day as Unitas, Latin origin, which means unity. Unity and harmony is vital for a team or an organization for overall success to self-actualize and achieve the vision. To grow unity and harmony, the heart and spirit in individual need to be aligned with trusting relationships, and individual must be empowered positively in themselves and each other. Therefore, let us unite and work for one another. हमारा देश भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत देश अनेकता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर विविध धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं धार्मिक आस्थाओं के लोग रहते हैं। अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। हर राज्य का अपना विशिष्ट भोजन है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, किंतु बाह्य रूप से दिखाई देने वाली इस एक अनेकता के मूल में एकता ही निहित है। अनेकता में एकता और विभिन्नताओं में समानता ही हमारे देश भारत की शान है, जहाँ सभी धर्मों को मानने वाले एक समान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो शांति, अमन, चैन एवं भाईचारा को पनाह देता है और इसे कायम रखना हम और आप सभी का परम कर्तव्य है। On this ceremonious day, we are indeed honored to have the presence of Shri Kumar Jaimangal, the MLA of Belmo. Our chief guest does not need any formal introduction as he is a well-known and distinguished figure in the society. He is highly respected and known for his kind deeds and selfless services for the society. Sir, you have showed your generosity and willingness to accept our invitation to be with us this evening, to bless us and encourage us, the future of our nation, by your gracious presence. On behalf of cordial welcome. Sister, you are the source of constant support, encouragement, and guidance. Your valuable presence. Indeed, this is the occasion. Kindly permit me to accord you the most sublime welcome. Hearty welcome, dear sister. I wish a very hearty welcome to our guest of honor, Shri Sanjeev Kumar Singh, CEO of Belmo. Dear sir, you have doubled our joy this day with your very presence. It shows your interest in the development of the school. We consider it an honor to have you this evening. The entire Carmel family welcomes you in our midst.
graciously spared his precious time to join us and encourage us. We are truly honored by your presence today and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. A very warm welcome to you, sir. Who is our leader, in whose footsteps we follow as we assume the beacon of excellence. All of us, especially the Carmel family, know the hard work she does and challenges she faces to make Carmel a better path for the children. Now, I heartily invite our dear principal to this function. To welcome you all to this happy and colorful evening. Your blessings and esteemed presence make us more confident and happy. A pleasant welcome to you all. I also would like to give a warm welcome to the parents of all the students. To the world, our parents may be simply a person, but for us, you are our world. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. We treasure your love and concern towards our institution, which is our second home. We can't thank all the parents for nurturing us and giving wings to fly. Dear parents, your magnanimous presence indeed graces this occasion. The entire programs of today bring the sum and substance of educational, cultural and disciplinary charisms and heritage of our school. I am quite sure that this much awaited program will relish your mind and cherish your memory. Once again to this function, wish you all an enjoyable evening with us. Thank you. To start us an auspicious note, we will have our lamp lighting ceremony. May I request Shri Kumar Jai Mangal, the MLA of Bedmo, Reverend Sister Lisi Thedes, the President of the school, Shri Sanjit Kumar Singh, the CEO of Bedmo, Shri K. Ramakrishna, the General Manager of BNK area, and Reverend Sister Sherin Joseph, the Principal of our school, for the lamp lighting ceremony. आगे न जाओ To give our message to the gathering. First of all, I'll give my warm regards to the Honorable Principal, Ma'am Joseph, who have kindly showered her blessing by inviting me as a chief guest for today. In front of me, I have Reverend Sister Lisi Teresji. Good afternoon, ma'am. The GM BNK, Krishan sir, CEO and the President of Carmel School, Sanjeev, distinguished guests, parents, and last but not the least, Carmelites, all the students, all the performers. From my side, I bless you all, and who are elder to me, I have a warm regards for them, and a big congratulations for the Parents' Day being hosted by the Carmel School. Thank you each and everybody for listening to me right now. When I was coming here, seriously, I was not a bit nervous, but after seeing such a little kid performing so well, such a tight vocabulary, such a tight English speaking method, now I feel what I should say or what I should not say. I am a little bit nervous right now, because to give a speech out there in the public and to give a speech in front of such as talented students, like I could not imagine even that this is the same Carmel School which I used to see 10 years ago, 15 years ago. The method which they choose to present in front of the parents what is the thought and what is the background concept of the Carmel School faculty is seriously
incredible, spectacular, and I just need to clap for them because the message they want to give is Unitas. Unitas, you have already came across this word by a small student performing out here. It means unity. And I coming from, I should not be political out here, but I coming from a family whose father has been a long time politician, carry forward the legacy of the Bermo community, being the 6-time MLA, I being the 7-time MLA from my family. What I have learned from my parents is what Unitas means. And I see the Carmel School faculty presenting the same message in front of the large gathering, in front of the large parents meeting today. Thank you so much, principals, for choosing this message. But what I think is not more of the parents could understand what our children was trying to say, because every parent has a desire to make their kids go in a better school, study more, learn English, present themselves, be more focused in life. But what they were trying to say, I think I should make you understand in Hindi. And that would be my speech for today. If I say, when I came over in Bermo, so you guys are lucky enough that you had your hometown, you had your home school, where you can, after they grow up also, after completing your education, after completing your graduation, you have your childhood friends around you. I was a little bit unlucky for that, because when I was in UKG, I was put down into the hostel. I could not, right now also I could not figure out why my parents put down me into the hostel, because I left my childhood friends. But you guys are blessed enough, the Carmelites are blessed enough that your parents want you to study here and want you to learn from here. But there is something beyond the school also, beyond the teaching line of the school also, beyond the faculty, what they are teaching. There is something beyond that. Can I have Suman Vardhan, Prem Mato and Palak on the stage? Okay, no problem. So till the time I invite them or they come on the stage, let me continue my speech. लेकिन अब मैं थोड़ा हिंदी बोल लेता हूँ. मैं उनके तरह ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ. मेरे को भी नर्वसनेस ज़्यादा हो रही है उन बच्चों को देख के, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो नॉर्मली पॉलिटिशियंस नर्वस नहीं होते. उनको कितना भी बड़ा स्टेज दे दीजिए, माइक दे दीजिए, वो बोलते जाते हैं. लेकिन जब यहाँ पे आया और उन बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा तो मैं बोला, यार इनके उम्र में हम भी परफॉर्म नहीं कर पाते थे. लाइक मैं सिंधिया स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन सिंधिया स्कूल में भी जब हमारे स्टेज पे एंकर्स परफॉर्म करते थे तो वो 12th होते थे, 11th क्लास वाले होते थे, 10th वाले होते थे. कोई मैंने 5th या 4th के बच्चे को इतना अच्छा वोकैबुलरी और इतना अच्छा स्पीचेस देते हुए नहीं देखा. सीरियसली, लाइक इट इज, मेरे को तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल आपने आज एक चीज़ प्रूव कर दिया, क्योंकि मैं स्टेज पे हूँ और सबसे पहले जो आज वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, हमारे एक्स-जीएम राव साहब, उनको तहे दिल से इस मंच से मैं प्रणाम करूंगा कि आपने कार्मल स्कूल को इतना अच्छा कैंपस बना के दिया, जहां से सही में हिंदुस्तान को देखते हुए, हिंदुस्तान के कल्चर को देखते हुए, हिंदुस्तान की यूनिटी को देखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान को देखते हुए यहाँ से स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं. आज हम लोग यहाँ पे हैं, जो कार्मल स्कूल के बारे में एक भावना बनी हुई है, जो आज मैं समझता हूं बहुत हद तक हमारे पत्रकार बंधुगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके मन में भी ये भावना उत्पन्न कहीं ना कहीं होती होगी, क्योंकि ये थर्ड आए हैं तो इन लोग को क्षेत्र में या फिर लोगों के बीच में ज़्यादा रहना होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट कार्मल तो लगता है कि भैया कार्मल मिशनरी है, मिशनरी का एक एजुकेशन हब है. लेकिन जो भी इन्होंने परफॉर्म किया, जो भी इन्होंने परफॉर्म किया, मैं शुरू से आ रहा था, आपने देखा कि जो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस भी चल रही थी,
वो कहीं ना कहीं किसी राज्य के कल्चर फेस्ट को डिस्क्राइब कर रही थी, कल्चर फेस्ट को दिखा रही थी। और जब ये स्टेज पे आए तो आपने इनके अगर ड्रेस कलर को नोट किया होगा तो जिस रो की मैं बात कर रहा हूँ, 3rd, 2nd एंड 4th रो, तो उसमें ट्राई कलर हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग था। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी स्कूल जहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है, ना आप उसको जाति से, ना आपको धर्म से, ना उसको पॉलिटिकल पार्टी से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो पेरेंट्स ऐसा समझते हैं, उन पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि जो बच्चों में सिखाइएगा, बड़े होके वही आपके बच्चों में रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कार्मल फैकल्टी के अंदर आप लोग पढ़ने के लिए भेजें, ताकि ऐसी अच्छी सोच से वो हिंदुस्तान और इस राज्य और इस बेरमो का नाम रोशन कर सके। मैं इन तीनों बच्चों को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि जब ये स्पीच दे रहे थे, मैंने पहले भी बोला कि बहुत हद तक कुछ लोग समझ पाए होंगे कि इन्होंने बोला क्या, लेकिन बहुत हद तक बहुत पेरेंट्स नहीं समझ पाए होंगे कि इन्होंने बोला क्या। इन्होंने उस बात को दर्शाया जिससे हिंदुस्तान को आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा है। इन्होंने उस बात को बताया जिससे हिंदुस्तान की बढ़ोतरी हुई है और आज उसी बात को लेके हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। और जहाँ पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है, वहाँ पे जाति, धर्म और पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं सुनी जाती है। मैं इन लोग को, इन तीनों बच्चों को इस मन से प्रणाम करना चाहूँगा और आशा और उम्मीद है कि इसी तरह आप लोग आगे बढ़े। आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो वो आपने बोला, कि मैं आपके लिए कर दूं? ओके, थैंक यू। क्योंकि अगर आपके स्पीच को मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कॉपी कैट। इन्होंने ये बोला कि हमारे हिंदुस्तान में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, अस्पतालें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीमारियाँ उससे ज़्यादा हैं। इन्होंने वो बोला कि हमारे हिंदुस्तान में कंप्यूटर्स, मशीन्स, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मानव है वो उतना ही ज़्यादा खराब है, जो मनुष्य है वो उतना ही ज़्यादा खराब है। इन्होंने ये बोला कि हमारी हिंदुस्तान की जो संख्या है वो अपने आप में अनेकता में एकता परिभाषित करती है, लेकिन जब हम अपने हिंदुस्तान के लिए करने जाते हैं तो हम विभिन्न खंडों में बढ़ जाते हैं, विभिन्न जातियों में बढ़ जाते हैं, विभिन्न धर्मों में बढ़ जाते हैं। आज के डेट में, आज के समय में सही मायने में हमें इनसे उभरना होगा। मैं इन तीनों बच्चों को तहे दिल से, जिन्होंने भी इनका स्पीच नरेट करवाया या जिन्होंने भी इनको स्पीच लिखवाया, उस महान अध्यापक को या अध्यापिका को इस मन से प्रणाम करता हूं और आशा और उम्मीद है कि आज के इस फंक्शन से हम कुछ सीख के जाएं। जब मैंने, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड, आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। मैं अपनी बेटियों से भी नहीं प्रणाम कराता हूँ। आज यहाँ पे दो लक्ष्मी प्रणाम करके चली गई। खैर, मैं थोड़ा स्कूल से हटकर एक बात बोलना चाहूँगा। जब सिस्टर ने मेरे से समय मांगा तो मैंने सिस्टर को समय दिया। मैंने बोला कि नहीं, मैं आ जाऊँगा आपके कार्यक्रम। उसके बाद कुछ कारण से मेरा कार्यक्रम दूसरी जगह तय हुआ। फिर मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि आप 3 बजे की जगह उसको 2 बजे कर दीजिए। शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू डू दैट। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं अफसोस कर रहा हूँ कि काश मैं थोड़ी देर और आप लोग के बीच में रह पाता, लेकिन आमतौर पर आप लोग ने मुझे जहाँ बैठाया है उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है, दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, और उससे भी बड़ी बात, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मेरे को उनके पद चिन्हों पे चलना जरूरी है। क्योंकि मैं चुनाव तो जरूर जीता, एमएलए जरूर बना, लेकिन मैं इस मन से खुलेआम बोलता हूँ कि मैं राजेंद्र बाबू के नाम पर चुनाव जीता, और अगला चुनाव अगर अपने नाम पर जीतना है तो मुझे काम करना होगा। इसलिए जब हम बच्चे थे तो विश्वास कीजिए कि जितना हम स्कूल में नहीं सीखते थे उतना ज्यादा अपने माता पिता के डांट से, अपने माता पिता के मारपीट से सीखते थे।
मैं अपने पिता से मार नहीं खाया, माँ मुझे बहुत मारी है, लेकिन पापा शायद कान भी नहीं पकड़े होंगे। मेरे भाभियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, उनको मालूम होगा कि मैं, लेकिन मेरी माँ से मैं बहुत पिटाया हूँ। आज के समय में यकीन मानिए, स्कूल में अगर टीचर हमारे बच्चों को थोड़ा सा भी मार देती है ना, तो पेरेंट्स उठ के टीचर्स के पास पहुंच जाते हैं कि ये आपने गलत किया, ये आपने सही नहीं किया। इसको थोड़ा आप लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि वॉयलेंस होना चाहिए स्कूल में, लेकिन अगर टीचर्स आपके बच्चों को टोक रही है, अगर आपके बच्चों को कुछ समझाने के लिए मार भी रही है, आप लोग अपने बच्चों को मारते हैं, मैं इस मन से खुले आम से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अपने बच्चों को मारते हैं, पेरेंट्स मारते हैं, तो आज के दिन में क्यों मारते हैं? क्योंकि ना हमारे माँ के पास समय है, ना हमारे पिता के पास समय है। और उसके बाद जो उनका फ्रस्ट्रेशन, माँ बाप इतना कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा समय का अभाव है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग दिन रात मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप बच्चों को समझाने के लिए मारते हैं। लेकिन अगर टीचर्स मारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारते हैं कि जो चीज़ हमारे पूर्वज अपने समय में कर पा रहे थे, वो आज के समय में हमारे माता पिता नहीं कर पा रहे। वो ये है कि स्कूल के बाद हमारे माता पिता हमारे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, ये सच्चाई है। और स्कूल के बाद जो बच्चे जा भी रहे हैं, जैसा कि प्रेम ने अपने स्पीच में बोला कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, रील्स, ये सब में ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं, सेल्फी बनाने में, रील बनाने में ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं। जो कम्युनल हमारे देश में फैलाया जा रहा है, उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अगर उस सब को चीजों को सुधार, उदाहरण के तौर पर आप देखते होंगे रामनवमी आता है, ईद आता है, बकरीद आता है, प्रशासन के लोग एकदम टेंस माहौल में चले जाते हैं। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर बेरमो बैठे हुए हैं, हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ता है कि कहीं कम्युनल राइट्स ना हो जाए, कहीं कम्युनल विवाद ना हो जाए। मैं खुद प्रतिदिन अपने घर से निकलता हूँ, टीका लगा के निकलता हूँ, पूजा करके निकलता हूँ प्रतिदिन, उससे पहले खाना नहीं खाता हूँ। लेकिन मैं अपने धर्म का प्रचार सड़क पर नहीं करता हूँ, अपने घर में करता हूँ, अपने पूजा स्थान पर करता हूँ, अपने माँ बाप का सेवा करके करता हूँ। यही चीज़ आज की डेट में बच्चों में हमें समझाना चाहिए, और इसका उदाहरण सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल से दे सकते हैं या समाज से दे सकते हैं। जब आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जो किसी अन्य पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, किसी दूसरे पार्टी के वर्डिंग्स को फॉलो करते होंगे, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते होंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी आपके बच्चों को बढ़ाने में थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए हूँ, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी बच्चों को बढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उनसे उनको दूर रखिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को एडमिट कराए, और समझ जाइए वो विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, या कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को एडमिट कराए और समझ जाइए कि वो मक्का मदीना से लाए हुए कुरान को अपने घर में रोज पूजा करे, रोज दुआ ले, और कहीं ना कहीं कम्युनल फीलिंग दोनों में, तो जब वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होगा और उसके माँ बाप को खून का जरूरत पड़ेगा, तो जो खून चढ़ेगा, क्या उस खून को आप बता सकते हैं कि हिंदू को मुस्लिम का खून नहीं चढ़ेगा या मुस्लिम को हिंदू का खून नहीं चढ़ेगा? उसी तरह आप लोग को समझने का जरूरत है कि जिस तरह आप लोग स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, कि आप बचपन में अपने बच्चों को ये बोल के भेजते हैं कि भैया जिस जाति से हो उसी जाति के दोस्तों को बनाना, जिस रिलीजन से आते हो उसी रिलीजन से अपने दोस्तों को बनाना। जब हम बच्चे में अपने दोस्त बनाने के लिए ये नहीं देखते हैं कि हम कौन से धर्म, कौन से जाति, कौन से समाज से आते हैं, तो हम बड़े होकर अपने आप को कम्युनल में, अपने आप को कास्टिज्म में, अपने आप को रिलीजन में हम बांटने का काम क्यों करते हैं? जब हम स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तब तो हम नहीं बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं या हम मुस्लिम के धर्म के हैं। तो आपको पढ़ना होगा तो मिशनरीज के सिस्टर से मत पढ़ना। हिंदू टीचर कोई होगी तब कार्मल स्कूल में पढ़ना, या मुस्लिम टीचर कोई होगी तब कार्मल स्कूल में पढ़ना।
जब हम इस चीज को अपने एजुकेशन ग्रोथ में फॉलो नहीं करते हैं तो बड़े होने के बाद हम अपने बच्चों के सामने इस चीज को कैसे दर्शा सकते हैं? क्योंकि जो आप अपने घर में दर्शाइएगा, यकीन मानिए उस स्कूल में कितना भी हमारे सिस्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा दें, लेकिन वो फॉलो करेंगे अपने माँ बाप को, अपने भैया बहनों को, अपने रिलेटिव्स को जो वो स्कूल के बाहर कर रहे हैं, वही उनका भी भविष्य हो। मेरा आप लोग से करम विनती है, निवेदन है कि एजुकेशन को कास्टिज्म हब मत बनने दीजिए, एजुकेशन को रिलीजन हब मत बनने दीजिए, एजुकेशन को किसी पार्टी का पॉलिटिकल हब मत बनने दीजिए। आप लोग बहुत लकी हैं कि इतनी तगड़ी फैकल्टी, इतनी, मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए, कि इतना ज्यादा दिन रात मेहनत करके आपके बच्चों का जो ग्रोथ है, आपके बच्चों का जो ब्रॉटअपनेस है, इतना तगड़ा इनका चाइल्डहुड प्रिपेयर हो रहा है जो आगे जाके किसी भी फील्ड में compete करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इस विधानसभा में कार्मल स्कूल है, और मैं तो बोलूँगा कि कार्मल स्कूल इस विधानसभा में नहीं, पूरे कोल इंडिया फैकल्टी के लिए एक रीढ़ का हड्डी है। क्योंकि कार्मल स्कूल पूरे विभिन्न कोयला खदानों में, विभिन्न कोयला परियोजना में कार्मल स्कूल की कहीं ना कहीं ब्रांचेस जरूर हैं, और इन लोग निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं। बस इनके कामों का आशीर्वाद आप इनको इसी शब्द में दे सकते हैं कि बच्चे जब स्कूल से जाएं तो उन पे नजर रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, आपके बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है। मैं आप लोग को तहे दिल से इस मन से प्रणाम करता हूं। अगर मेरी पंक्तियों से किसी को बुरा लगा होगा तो उससे माफी मांगता हूं, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा हिंदुस्तान यही हमें सिखाता है कि अनेकता में एकता का प्रतीक हम सब हैं, और हमारे हर राज्य के लोग सम्मान पूर्वक उतने ही सम्मानित है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहें। उनका अपना एक अधिकार है जो उनको संविधान के तहत मिलता है। किसी नेता या किसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव या किसी जाति के रिप्रेजेंटेटिव वाले व्यक्ति के चलते नहीं बनता है। ये हमारा संविधान है जो हमारे को अधिकार देता है कि हमारे हिंदुस्तान में हर एक मूलवासी, हर एक व्यक्ति, हर एक रहने वाला विभिन्न जातियों का जो समाज है वो हिंदुस्तान में एक रह के हिंदुस्तान के लिए कहीं पे भी काम कर सकता है। आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सिस्टर, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल that if you can come to me with the any request that I can be helpful to the Carmel faculty, Carmel school, and I can provide you with the DMFT fund, with the MLA fund. I'll be honored to be a part of Carmelites and the growth of Carmelites. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Great. Thank you, sister, for mesmerizing you this evening. You will soon discover. Please give a huge applause to our chief guest, Shri Jai Mangal. Jai Mangal, please. You will soon discover who are stepping to the stage for the first time to come and unveil the celebration. I'm really amazed with your gratitude. Well, thank you so much. Thank you. Thank you. Please, तुम भी चल रहा है क्या? मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, गुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, गुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताबें करी हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो
थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ, अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। लिखोगे लिखोगे पढ़ोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूंगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। लिखोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना दिल जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना दिल जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, all the Mr. Nache, all the Rajini fans, all the Mr. Nache.
kids who presented an outstanding and thrilling performance through their dance. I dance because there is no greater feeling in the world than moving into a piece of music and letting the rest of the world disappear. Dancing is poetry with arms and legs. Everything in the universe has rhythm. Now, let's be still and watch the dazzling movements of our tiny stars. Let's welcome them to the stage. There was a princess long ago. And she lived in a big high tower, big high tower, big high tower. And she lived in a big high tower long ago. A wicked fairy waved her wand, waved her wand, waved her wand. A wicked fairy waved her wand long ago. The princess slept for 100 years, 100 years, 100. A great big forest grew around, grew around, grew around. A great big forest grew around long ago. A gallant prince came riding by, riding by, riding by. A gallant prince came riding by long ago. He chopped the trees down with his sword, with his sword, with his sword. He chopped the trees down with his sword long ago. He kissed her hand to wake her up, wake her up, wake her up. He kissed her hand to wake her up long ago. And everybody's happy now, happy now, happy now. And everybody's happy now, happy now. Incredible. The young dancers really held everyone captive. It's a great pleasure to me to introduce Shri Sanjit Kumar Singh, CEO of BIRMO, who has newly joined the responsibility. He is a person of virtue, simplicity, and an inspiration. We are so lucky that he found time and expressed his interest to be with us today despite of his hectic schedule. Dear sir, we welcome you to elevate us with your words. करेली के इस पेरेंट डे 2023 के इस कार्यक्रम में एक अंचल अधिकारी, एक सर्कल ऑफिसर के रूप में आप सबों के बीच मुझे रूबरू कराने के लिए इस विद्यालय के प्राचार्य महोदया, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण, विद्यालय प्रबंधन के सभी लोगों का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होने वाले बच्चों, उनके पेरेंट्स और बेरमो प्रखंड से आए हुए सभी लोगों का मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी, जैसा कि अभी हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक जी ने बच्चों के बारे में
पेरेंट्स के बारे में और उनके भविष्य को किस प्रकार से गढ़ा जाए, किस प्रकार से उनके भविष्य को एक आकार दिया जाए, उसके संदर्भ में बहुत ही गुणकारी बातें आप लोगों को उन्होंने बताया है। मैंने भी अभी बच्चों का स्पीच, बच्चों का परफॉर्मेंस अभी देखकर मैं प्राचार्य महोदया से वही डिस्कस कर रहा था कि ये बच्चे कौन से क्लास में हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे LKG में हैं। अब मुझे याद है, हम लोग तो सही बात है, जैसे माननीय विधायक महोदय ने भी कहा कि स्टेज पे आना इस एज में हम लोग के पैर कांपते थे। हमें भी याद है, हम लोग जब स्टेज के लिए होता था तो हम अपने मित्रों को कहते थे कि हम पीछे जाएंगे तो आप लोग आगे रहना, परंतु समय बदला है। और मैं चूँकि सेंट जेवियर से पढ़ा हूँ, तो मैं इन कल्चरों से अवगत हूँ। मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस पद पे काम कर रहा हूँ, उसमें मिशनरीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इस मंच से मैं उन सभी अध्यापकों, प्राचार्यों को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बात सही है कि आज का जो जीवन है और हमारे पेरेंट्स का जो जीवन था, या हम लोग एज ए पेरेंट्स जब अपने आप को देखते हैं तो उसमें मूलभूत बहुत सारे अंतर आ गए हैं। पहले की पेरेंट्स में, अभिभावकों में स्मार्टफोन की समस्याएं नहीं थी, आज है। पहले जो जिंदगी में स्थिरता थी आपके जीवन में, निजी जीवन में, आपके एक अभिभावक पूर्ण जीवन में, वो स्थिरता अब नहीं है। चाहे उसके मायने कुछ भी हों, चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों, परंतु आज के अभिभावक के रूप में आपका जीवन बहुत ही परिवर्तनशील है और जिसका प्रभाव आपके बच्चों पर अवश्य ही पड़ता है। आप सही में सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे कार्मल जैसे अति विशेषज्ञ पूर्ण विद्यालय में, शैक्षणिक संस्थान में अपने प्राइमरी एजुकेशन, जो बुनियाद होता है एक मानव के अपने संपूर्ण जीवन को चलाने के लिए, उसमें एक महत्वपूर्ण मोतियों से के समान उनको गढ़ा जा रहा है। आप देखिएगा कि आगे चलकर आपके सभी बच्चे अपने अपने जीवन में सफलताओं के शिखर पर, जहां आप चाहें, जहां वो चाहे, वो जरूर पहुंचेगा। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें जरूर आपसे शेयर करूंगा जो मेरे निजी जीवन के अनुभव से भी है और शायद आपके लिए वो प्रासंगिक हो। बच्चे जब भी स्कूल से घर जाएं, कितने भी आप बिजी हो, कितने भी हाई क्लास पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, या बिजनेसमैन हो, आपका 16 घंटे का वर्किंग आवर हो, परंतु दिन में कम से कम आप 60 मिनट जरूर निकालें, 60 मिनट जरूर निकालें अपने बच्चों के लिए। जरूर पूछें आप कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा। ये मत पूछे कि क्या पढ़ा। पढ़ने का मूल्यांकन शिक्षक
आपसे बेहतर करेंगे और कर रहे होंगे, परंतु आप जरूर उनसे ये एक सवाल करें कि बताओ आज आपने स्कूल से आने के बाद ये स्कूल में रहकर आपने आज क्या सीखा, क्या नया चीज सीखा। ये जरूर आप अपने बच्चों से जरूर पूछें। इससे दो चीजें जरूर होगा। एक, अगर वो बच्चा नहीं भी सीखता है या नहीं भी सीखने की चेष्टा रखता है तो आपके पूछने पर उसके मन में कुछ नया सीखने का भाव जरूर जागृत होगा, जरूर वो सीखने की कोशिश करेगा, ताकि हम अपने अभिभावक को, अपने माता पिता को गर्व के साथ बता सकें कि पापा मम्मी आज हम ये नया चीज सीखे हैं। साथ ही साथ एक अभिभावक और एक पुत्र या संतान के बीच का जो संवाद है, जो आज के समय में लगभग टूट सा गया है, वो संवाद आपका मजबूत होगा। आज +2 के बाद जब इस विद्यालय से आपके बच्चे बाहर के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, चाहे वो इंडिया में कोटा जैसे शहर हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, या फिर फॉरेन में इंग्लैंड हो, न्यूयॉर्क हो, कहीं भी जाएं पढ़ने के लिए, तो आपके इन 10 सालों में, 12 सालों में आपके और आपके बच्चों के बीच में जो किया गया संवाद है, जो बॉन्डिंग है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बहुत काम आने वाला है बच्चों को, उनके अपने छात्र जीवन में और आने वाले आगे के जीवन में। साथ ही साथ आप अपने वास्तविक जीवन से जरूर परिचय कराएं, इर्द गिर्द के जीवन से जरूर उसे परिचित कराएं कि आप क्या हैं, कौन हैं। ये उसके आत्मविश्वास को, उसके इनर सोल को मजबूत करेगा। आज के जीवन में एक छात्र के लिए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो आपके बच्चे हैं, उसके लिए आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है और आने वाले दिनों में उसी आत्मविश्वास की उसको ज़रूरत है। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बताया है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यों में लगे हुए हैं, और मैं इस मंच से मैं भी प्राचार्य महोदय से कहूँगा कि मेरे स्तर से या बेरमो प्रखंड प्रशासन के तरफ से कभी किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं हों, जरूरत पड़े, हमें जरूर याद करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जब पौधा छोटा होता है, जब आप नए पौधे, हम तो कुछ दिन जब दिल्ली में थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ हम अटैच रहे थे दिल्ली में, तो जब पौधों को हम लोग नए जो छोटे छोटे पौधे होते हैं लगाते हैं तो उनको केयर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पे उसको नष्ट करने के लिए एनिमल्स रहेंगे, नष्ट करने के लिए ज़मीन के अंदर के कीड़े मकोड़े रहेंगे, उनको पानी जरूरत, खाद की जरूरत, बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पौधे हैं जिन्हें अभी विशाल पेड़ बनना है, जो आगे चल करके आपको छांव देंगे और समाज को फल और फूल देंगे। जरूर उनको नरिश कीजिए। और मेरे पिताजी कहते थे कि उनसे मैंने कभी पूछा था कि वेल्थ क्या है पिताजी, संपत्ति क्या है। मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, तो सवाल ऐसे ही बैठे पूछे संपत्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज के जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न सोसाइटी है, जो बच्चे में, अपने बच्चों में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शिक्षा के रूप में, एजुकेशन के रूप में,
आज के समय में वास्तविक संपत्ति वही है, वही आपका काम है। तो धन्यवाद पुनः कि इस कार्यक्रम में आपने बुलाया और एंजॉय करें और सीखें। थैंक यू, धन्यवाद। which involves various figures, movements, and mesmerizing formation, which encourages its audience to the core. Here is a song which vividly portrays Scott's own country, the land of greenery, the land of swing palm and dancing paddy field. And it is captured the essence of backwater. Let us enjoy this vibrant performance, which is a wonderful blend of grace. ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലകൾ പുൽകും കണുവലിയും ജീവൻ കാറ്റിൽ ഇടഞ്ഞാറിൽ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിനാ പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിതാ കേരളീരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കരിയുടും മണ്ണു തിരുമണമോ പെണ്ണിനു വിയർപ്പാലേ മണമോ ഞാറ്റോല പച്ചവള പൊന്നും ചെടിക്കൊരുസ് പെണ്ണിവൾ കളമാറ്റും കളമൊഴിയാ കൊച്ചികൾ പകൽ നീലേക്കിനാ കാണും ഒട്ടിടും അനുരാഗക്കരൾ പോലെ മണ്ണിനും ഇവൾ പോലെ മണം തുടിക്കും കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം സ്വർണ്ണമണി നിറമോ കണ്ണിനു കണിയാകും നിറ
It was a heart-throbbing performance by the students. In the realm of dance, the feet find the beat, the heart finds the rhythm, and the soul finds the song. Ladies and gentlemen, the rhythmic spectacle is about to unfold as the dancers assemble to cast a spell of enchantment. Let their artistic expression serve as an inspiring example of the beauty of dance to all of us.
without having to speak. Music plays an important role in bringing this art form to life, and it is an integral part of the dance. So get ready for the whirlwind of joy and excitement. Without further ado, let's just prepare for the spectacular start. Nadi kisa samai ko kaisa ini himmat cuma nonoge. Kamu shani shani, kamu shani shani, ani akan nonoge. Kamu shani shani, kamu shani shani, ani akan nonoge. Wow wow, wow wow, ada wow 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 wow. Di sini belai nak kau. Ini belai nak thoka. Krishna, the general manager of BNK area, a person with distinct vision and
illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and an inspiration to all of us. On this day of celebration, dear sir, enrich us with your motivational speech. मदर्स डे के उपलक्ष्य में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री एस.के. सिंह साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल इसी मैडम साहब और स्कूल का प्रिंसिपल शरीन मैडम, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन पेरेंट्स डे का देख के मेरे को 50 साल पहले का मेरा बचपन याद आ रहा है। हम लोग उस टाइम में ना एक ही रूम रहा करते थे, विलेज में एक ही रूम रहते थे, उसी में सब क्लास एक ही टीचर, सब सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर से पूरा एक ही क्लास रूम, उसमें 20-25 बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज के ज़माने में देखिए कितना फैसिलिटी, अपना घर के पास इतना अच्छा स्कूल और इतना टीचर्स, इतना एस्टेब्लिशमेंट, इतना चेंजेस आए 50 साल में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टीचर्स का ये फ़ायदा अपना स्टूडेंट्स को मिला, ये बहुत ही अच्छा बात है। इसको यूज़ करके अपन लोग जो भी अभी स्टूडेंट्स में बहुत सारे ये रहता है, उत्साह रहता है। हमें पेरेंट्स से मैं आग्रह करता हूँ, बच्चों को यही बात बोलिए हमको ये डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये IAS बनो, ये चीज़ एक ही नहीं है। बचपन में हम लोग उस जमाने में भी यही बोलते थे, डॉक्टर या इंजीनियर, वो दो लाइन में सोचता था और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे एवेन्यूज है देश में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, और सोशल मीडिया का मास कम्युनिकेशन बहुत सारा आ गया है। लेकिन आप लोग घर में ऑब्जर्व करिए कि बच्चे को रुचि क्या है, ये किस तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, स्पोर्ट्स में रहता है, वो लोग जो है उसमें आप लोग को बढ़ावा देना है। मैं मेरा घर का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा छोटा बच्चे को मैं मेडिसिन डॉक्टर बनने के लिए बोलता था, बड़ा बच्ची लीड हो गया ये उसको मेडिसिन। तो ये लेटेस्ट का बात है 2019-20 का, उसको साइंस में मार्क्स भी अच्छा आ रहा, ऑनलाइन टेस्ट भी करते थे, LL का कोटा के सब अराउंड 500 मार्क्स भी आ रहे, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते जा रहा है। लेकिन वो आखिरी में वो एग्ज़ाम भी नहीं लिखा, वो बोले हमको नहीं पढ़ना है, वो एक ही चीज़ बोलता है। वो भी आजकल बच्चे लोग वो सोचे, वो जो छोटा बच्चा हमको बोला मेरे को ये है क्या नहीं करना है, वो मेरे को क्लियर है। अपन लोग क्या सोचते हैं, हमको ये करना है, वो बनना है, ये करना है। वो क्या बोला मेरे को, क्या नहीं बनना है, क्या नहीं करना है, वो मेरा मन में फिक्स है। बोले अब कोई भी बोले तो हम नहीं करेंगे। तो मैं ये एज ए पेरेंट मैं नहीं सुना, मैं दूसरा डायरेक्शन में चले गया, वो दूसरा डायरेक्शन में, तो मतलब वहाँ पे तो गैप आ गया। मैं कहने का ये है कि सभी पेरेंट्स को आग्रह करता हूँ, बच्चों में जो रुचि है, उनको जो जिसमें इंटरेस्ट है, उसी में आप उसको बढ़ावा दीजिए। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ में आप एक्सीलेंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसी में ये दो इंजीनियर डॉक्टर में एक्सीलेंट है, हर फील्ड में, कोई भी फील्ड होने दो, उसमें अगर अपन लोग अगर हार्ड वर्क करें, उसमें एकदम टॉप में जा सकते हैं। उसके लिए ये चाहिए कि डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क, ये तीन ही मूल मंत्र है। आपको अगर कुछ बनना है, ये तीनों में डिसिप्लिन में रहेगा, उसमें डिटर्मिनेशन, हमको ये करना है, ये इसमें यहाँ तक पहुँचना है, बस उसके बाद हार्ड वर्क है। उसके बाद जो पेरेंट्स है ना, अपना को उसको जाने के लिए वो सुविधा देते जाएगा। तो मैं बच्चों से भी आग्रह कर रहा हूँ, तो आजकल हमारा बचपन में यही सिखाते थे, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। ये हम लोग बचपन में सिखाते हैं। अभी एक्चुअली अभी देखा तो आजकल अभी हम लोग इतना उम्र में आने के बाद जो क्या कमी किया हम लोग बचपन में, वो मैं बताना जा रहा हूँ। आप लोग हेल्थ का इश्यूज में ज़्यादा अपन
लोग ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स भी बच्चे भी। बचपन में जो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें अगर आप लोगों को हैबिट्स खाने पीने का, खेल कूद हैबिट्स अगर अच्छे से बचपन से अगर नहीं करेंगे तो अभी 45 ईयर्स में बहुत लोगों को देखिए, एवरेज में 45 ईयर्स में 40-45 आते ही बीपी शुगर क्या क्या बीमारी आता है। तो और 20-25 साल के बाद आपको लगता कि और 30 ईयर्स में ऐसा आने लगेगा अगर आप लोगों को नहीं सुधरेगा तो। मैं कोई स्कूल में गया था 2-3 साल पहले, उसमें छोटा छोटा बच्चा ने से बताया सबको चश्मा लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा चश्मा है, ताजुब हुआ। लेकिन ये स्कूल में देखा तो बहुत सारे बच्चे को चश्मा नहीं है, एक अच्छा एक अचीवमेंट है स्कूल पे लग रहा है। तो मेरा कहना है कि आप लोग सुबह उठते जल्दी उठिए, तो अपना हेल्थ का कम से कम 45 मिनट्स पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सलाह देता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना 24 आवर्स में कम से कम 45 मिनट्स सुबह वॉकिंग, योगा, जो भी एक्सरसाइज, उसे बच्चों को भी साथ में लेके जाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग मिस किया हम लोग जीवन में भी, उसी से अभी हम लोग को हेल्थ इश्यूज आ रहा। अभी आप लोग कितने भी अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉप पोस्ट में पहुंचे, लेकिन हेल्थ ठीक नहीं, जितना भी आप लोग अच्छा पोस्ट में कितना भी पैसा रहे वो सब कुछ काम करें। तो हेल्थ इज फर्स्ट है। तो 45 मिनट्स आप लोग बच्चे लोग अभी से सिखाइए। टाइम तो बहुत सारे आप लोग वेस्ट करते हैं, 24 आवर्स में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, गप मारने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में और यूट्यूब देखने में, सब वेस्ट करते हैं। वो सब टाइम कम करके इसमें हेल्थ का साइड में आइए। अगर हेल्थ अच्छा है तो पढ़ाई भी अच्छा होगा, वहाँ से शुरुआत करिए। तो ऐसा भी कुछ बैलेंस वर्क है तो होमवर्क सुबह करिए और स्कूल जल्दी चल तो स्कूल चले जाइए। स्कूल में टीचर्स जो बोलता है वो ध्यान से सुनिए। मेरा छोटा लड़का भी है, स्कूल में जो पढ़ाते ध्यान, मैं बीच बीच में जाके देखता था दूर से, स्कूल का जो विंडोज है तो स्कूल में डिस्टर्ब नहीं रहता, ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन घर में आके एक पैसा का नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ा भी डिग्री में भी आगे कभी नहीं पढ़ता हूँ। जो स्कूल में सुना वही जाके एग्जाम लिखता है, फिर भी फर्स्ट क्लास आ गया जो भी है, लेकिन वो ऐसा मत कर आप लोग। मेरा सलाह है स्कूल में जो टीचर बताएंगे ध्यान से सुनना। जो भी क्वेश्चन है मन में जो भी डाउट है आप टीचर क्वेश्चन करना ही है। जब तक और डाउट क्लियर नहीं होगा तो आगे बंद करेंगे, टीचर को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब डाउट क्लियर करे तो आपको ठीक से सुनेगा तो तेरे को डाउट्स बहुत सारे आता है, वो डाउट्स क्लियर करेगा। मेरी भाई जो भी स्कूल में रहता ना, मेरे टीचर्स परेशान आते, बहुत क्वेश्चन पूछता था, मैं क्वेश्चन बैंक बोलता था मेरे को, तो तभी तो थोड़ा क्लैरिटी आता है। उसके बाद स्कूल से जाने के बाद आप टीवी के सामने ये यूट्यूब, मोबाइल, स्मार्टफोन में नहीं लेना है। स्कूल में जाने के बाद जो भी अगर नाश्ता वगैरह करना है मम्मी पापा से, उसके बाद खेल कूद कम से कम हाफ एन आवर, कोई भी खेल जो भी आपको अच्छा लगता है वो खेलना जरूरी है। हाफ एन आवर उसमें स्पेंड करिए, फिर आइए फ्रेश स्नान करके बढ़िया से बैठ के अपना सुबह दिन भर जो क्लास में बताया उसको एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद जो भी होमवर्क दिया वो कर दीजिए आधा घंटा 1 घंटा में। उसके बाद मैं क्या बोला, नेक्स्ट डे का जो टाइम टेबल आता है वो लेसन का टेक्स्ट बुक तो रहता है, नेक्स्ट डे में क्या बोलने जा रहा है अपना टीचर, वो एक लेसन पढ़िए। वो पढ़ने से कम 30% तो अपने दिमाग में घुसेगा, भले 50-80% नहीं होता, 30% तो अपने तो आ जाएगा लेसन पढ़ने से। 10 मिनट्स के लिए लेसन, उसमें से बहुत सारे आपको थोड़ा सा आएगा। नेक्स्ट डे जो टीचर ने बताएंगे क्लास में उससे आपको एकदम 80% तक चले जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट्स आता है वो तुरंत क्लियर करिए। उसके बाद शाम में जाके फिर रिवीजन, तो उसमें आपको नंबर 1 बन सकता है। ये थोड़ा सा आप लोग अगर कुछ लोग को थोड़ा सा मेमोरी थोड़ा सा जिसके पास वीक है वो शाम में घर जाने के बाद पढ़ने के बाद थोड़ा लिखना प्रैक्टिस कर लेना। अगर एक बार लिखा 100 बार पढ़ने का बराबर है, सब टीचर्स ने भी बोला होगा। तो अगर किसी का थोड़ा सा याद ही थोड़ा कम रहेगा तो उसको प्रैक्टिस करें लिखना। ये मैं जो बोला ये अगर ये आप लोग फॉलो करेंगे घर में, निश्चित रूप से 80% कम मार्क्स आने की चांस ही नहीं है, तो वो 90% आना ही आना है। उसके ऊपर फिर आपका हार्ड वर्क है, जितना आपको टाइम दे रहा है उसके ऊपर आपको 95-99%। तो आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी बच्चे से पूछो 95, 97, 98
जो 11th-12th में जो 98% है उसको IIT में भी कभी सीट नहीं, NIT में भी नहीं है, ये इतना कॉम्पिटिशन है। तो अपना में सामने IIT NIT यही नहीं है, बहुत सारे ये है, वो सब अच्छे से अपना मेंटर को लीजिए, गाइडेंस लीजिए, क्या बनना है, किस तरफ जाना है, तो उसी में आप लोग का हार्डवर्क करते जाना। और मैं और एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, तो स्वच्छता का बारे में, आजकल स्वच्छता के बारे में बहुत भाषण देता है, लेकिन अपना जो भी स्वच्छता है अपना यहाँ से अपना रूम से चालू होता है, अपना घर से चालू होता है, अपना मोहल्ले से चालू होता है, अपना कॉलोनी से, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट से, अपना स्टेट, अपना देश का है। मैं 2011 में सिंगापुर गया थे फैमिली के बच्चों के साथ। वहाँ पे जो रेस्ट रूम्स वॉशरूम्स रहता है वो गया था, मेरा छोटा बच्चा 8 साल का था। वो जो उसके बाद जो टिश्यू पेपर रहता था ऐसे ऐसे करते करते वो नीचे गिर गया। मैं बच्चों को बचपन में नीचे गिर गए तो मत उठाओ, थोड़ा सा आप गंदा हो जाएगा, फिर इधर उधर करेगा, बीमारी बढ़ेगा। उसका ऐसे मैं सिखाता है, नीचे गिरा मत पकड़ो। वो छोटा उठा नीचे जिससे वो ले रहा भी था, मैं मना कर दिया, अरे नहीं मत पकड़ना, फिर गंदा है। तुरंत वो सिंगापुरियन सिटीजन, ध्यान से सुनिएगा, सिंगापुर सिटीजन वो देखकर मेरे को पकड़ा। अब कैसे पेरेंट है, बच्चे को यही सिखाता क्या मत उठाओ, तो गिर गया, उसको उठा के डस्टबिन में डालना चाहिए। अब क्या सिखा रहे, तुरंत मैं उठाने जा रहा है, मैंने हाथ में उठाया, बच्चे को सिखा दिया। मतलब इतना मेरा पीछे पड़ गया, आखिर मजबूरी से बच्चे को निकाल के डालना पड़ा, फिर हाथ में। तो ये बोलने का अगर यही चीज़ अपन लोग अपने यहाँ पे करेंगे ना, मारपीट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अपना इंडिया में कोई भी ऐसे किया, अपन बोलने जाते हैं, हम बहुत आया तो बोलने आ गया बोल के झगड़ा में उतर जाता है, उतरने दीजिए। लेकिन ये सभी लोग अगर प्रैक्टिस करें अपना देश में भी, कितना अच्छा सफाई होगा। जाकर मेन रोड है तो घर का कचरा लाकर रोड में डाल रहा है, ताजुब हुआ। घर में जो कचरा है वो आके मेन रोड में डाल रहा, बीच में आके, तो कितना मतलब खराब चीज़ में अपना देश वक्त कैसा हो गया। तो ये बच्चों को अभी से सिखाना, और यही भविष्य है। ये बच्चे लोग अभी मेरे को बहुत सारे बच्चों में नज़र आ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स और साइंटिस्ट बहुत सारे बन सकता है। तो यही अपना भविष्य है, यही बच्चे अपना देश का भविष्य है। अपना इंडिया की इकोनॉमी अभी 4th प्लेस में है, वो अपने को आगे 2047 तक जो अपना स्वतंत्रता के 100 ईयर्स होगा, तब तक ये नंबर 2 में आना है। उसी में आप लोग का तब तक आप लोग भी 25-30 साल होएगा, आप लोग योगदान बहुत रहेंगे, यही अपना देश का फ्यूचर है। तो अभी से आप लोग जो बताया बातों में ध्यान देके, और ये स्कूल का भी नाम टॉप लाइए, और ये बेरमो फील्ड का भी नाम टॉप होगा, स्कूल ऑटोमेटिक टॉप हो गए तो अपना एरिया का, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अच्छा होगा। धन्यवाद। जल्दी आ जाएगा प्रेम भैया। He is the peon of this school. He is working almost 24 years. He is getting him 25 years silver jubilee going to celebrate. 25 साल का सेवा किया स्कूल के लिए।